Hello students, now in this lecture we will study the following topics, and the topics are electric potential difference, electric potential due to a single point charge, electric potential due to system of charges. So in this lecture there is one new term, and that is electric potential. So first of all we have to learn about this new term electric potential. So let's start. So students, suppose we have a positive Q charge here, and for this charge we know that it will create its field towards itself, and due to positive charge the electric field will originate from itself and terminate into infinity. Okay, and in its electric field, when we put another charge, then that particular charge will experience a force. That force may be towards to positive charge and away from to this positive charge. Depends on the nature of that particular test charge. Okay friends, so suppose this is the infinite point, and at that infinite point we have a test charge. इस infinite point पे हमारे पास कोई test charge है. Okay, when we are taking this test charge towards to this charge, then what will happen? At infinite, this test charge will not experience any type of force, because we know that nearby this charge electric field strength is more compared to this point, and at infinite distance the electric field due to this charge will be zero, because we know that E vector equals to kq upon r square. R is infinite, so electric field becomes zero. So if here electric field is zero, so force experienced by this test charge will be zero. Now we are taking this test charge towards to this source charge. When we are moving in this direction, and suppose at this point this test charge experience a force QE vector, it means कि इस पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड है वो यहां स्टार्ट होता है, इससे पहले कोई फील्ड नहीं था. ओके, जैसे इसके फील्ड में आता है, इसके लिमिट में आता है, इसके दायरे में आता है, द टेस्ट चार्ज इज गोइंग टू एक्सपीरियंस ए फोर्स दैट इज क्यू नॉट ई वेक्टर. ओके, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इट मींस दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टुवर्ड्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, देन the direction of the force which is experienced by this test charge will be towards to this source charge or opposite to electric field created by this charge. Okay, now यहां से ये वापस रिपल होगा. अगर नेगेटिव होता तो ये अट्रैक्ट होता, बट हमें क्या करना है, इस पॉजिटिव चार्ज को जो टेस्ट चार्ज है यहां पे एस्टेब्लिश करना है. इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब हम यही एज्यूम करके चल रहे हैं कि वी आर टेकिंग ए टेस्ट चार्ज विच इज पॉजिटिव. ओके, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए रिपल हो रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है. तो इस डायरेक्शन में रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स. ओके, या फिर हमें क्या करना होगा, एक्सटर्नल वर्क करना होगा अगेंस्ट दिस फोर्स. ये फोर्स जितना वर्क करेगा उतना ही वर्क हमें इसके अगेंस्ट करना होगा. ये जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही फोर्स हमें इस डायरेक्शन में लगाना होगा. वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स अगेंस्ट दिस फोर्स, एंड दैट फोर्स विल बी एक्सटर्नल. ओके, तो फोर्स इज द एनर्जी, और यहां जो एनर्जी है वो किसी पॉजिटिव यूनिट चार्ज के लिए
नेगेटिव पॉजिटिव का यहाँ कोई खेल नहीं है, हम यहां से पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने पॉजिटिव बोला। बाकी फॉर यूनिट चार्ज दैट एनर्जी which we are applying from the external source is equals to electrical potential energy। इसी एनर्जी को इस टर्म में हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, और जो यूनिट चार्ज है, तो यूनिट चार्ज के लिए यही इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, मीन्स सिंपली द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन against the field to establish a unit positive charge in an external electric field। इस यूनिट चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एस्टेब्लिश करने के लिए इसके अगेंस्ट जो हमने वर्क किया है, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो अगेन नोट से देखते हैं। Let us consider that we have a uniform electric field E vector। ये कौन सा है, किसी सोर्स चार्ज का है। This is due to source charge। If a point positive test charge is placed in this electric field, then it will experience a force, and that will be QE। Due to this force, the charge will accelerate into the direction of electric field or opposite to the direction of electric field। In or opposite depends on nature of the test charge। If it is positive, then into the direction, or if it is negative, then opposite to the direction of electric field। Now we have to establish a charge in the electric field, then work has to be done against the electrostatic force QE। Okay, तो W हम जानते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर होता है, बट अगेंस्ट जो टर्म आया उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव साइन यहां यूज कर रहे हैं। द एस्टेब्लिश वर्क इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वर्क हम काम में ले रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और यही इसका एक्सप्लेनेशन है। द वर्क डन against electric field to establish a positive test charge in the electric field without acceleration। एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए पार्टिकल, तो एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए, इसका मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। इट मीन यहां जो हम एक्सटर्नल वर्क करेंगे उसका जो अमाउंट होगा वो इसके वर्क के इक्वल ही होना चाहिए, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स इतना लग रहा है, तो इसके अपोजिट अगर इतना ही फोर्स लगाएंगे तो फिर फोर्स कैंसिल आउट। Net force on this charge will be zero। It means it will not accelerate। Or the ratio of work done against to the electric field to establish a charge in electric field without acceleration to the magnitude of the charge, V equals to W upon Q naught। That is very important। V electric potential, W work done against the external field where we have to establish the test charge, and Q naught is charge, test charge। The work done against electric field to establish a point unit charge from infinity to a point in electric field without acceleration is known as electric potential at that point। So V equals to W upon Q naught। If Q naught is 1 coulomb, so V equals to W। Now W equals to minus integral from infinite to R F dot dr। So W equals to minus integral infinite to R F क्या हो जाएगा, Q into E, charge into electric field dot dr। Now W equals to minus Q integral E dot dr। Q क्या आ जाएगा, इस साइड डिनोमिनेटर में आ जाएगा। So W upon Q equals to minus integral of limit from infinite to R E dr, and W upon Q is potential। So potential V of R equals to integral of limit from infinite to R E vector dot dr vector। ओके, सो यहां एक बात ध्यान देनी है
कि हमने डायरेक्ट ही v ऑफ r लिख दिया यहाँ, v ऑफ r इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल इनफाइनाइट टू r p वेक्टर डॉट dr वेक्टर, एंड दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन हमने डायरेक्ट v ऑफ r यानी अपर लिमिट की बात की, लोअर लिमिट की बात नहीं की। तो अगर हम वैसे देखा जाए तो अगर इसको लिमिट वाइज लिखते तो क्या लिखते, v ऑफ अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या r माइनस v ऑफ लोअर लिमिट दैट इज इनफाइनाइट। सो रियल में इसको क्या लिखेंगे हम, वी विल राइट v ऑफ r माइनस v ऑफ इनफाइनाइट इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ऑफ लिमिट फ्रॉम इनफाइनाइट टू r e डॉट dr। और यहां क्या दिखाया है कि v इनफाइनाइट क्या है, 0। तो जब v इनफाइनाइट 0 होगा तो v ऑफ r इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, माइनस इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट इनफाइनाइट टू r e डॉट dr। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन व्हाई वी आर टेकिंग 0 potential at infinite point? We know that due to this positive charge nearby to this the electric field strength is strong। क्यों? क्योंकि यहां से यहां का जो डिस्टेंस है that is very less, and according to the formula of electric field intensity E equals to K Q upon R square। तो R जितना कम इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा, R जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम। तो R अगर यहाँ कम है तो KQ अपॉन R स्क्वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाएगा। और एट इनफाइनाइट पे हम बात करें तो इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। जब इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और यहां जब हम किसी चार्ज को रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की वजह से ये कोई फोर्स ही एक्सपीरियंस नहीं करेगा। द चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंस एट द इनफाइनाइट पॉइंट। इट मीन्स हम यहां पे कोई भी वर्क नहीं करेंगे। जब कोई फील्ड ही नहीं है तो उसके अगेंस्ट हमें वर्क क्यों करना होगा। यहां जब हमें वर्क ही नहीं कर रहे हैं तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। सो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हमें हमेशा के लिए याद रखना है। और यहां पे एक बात और याद रखनी है, अब मान लीजिए कि इनफाइनाइट की जगह मैंने दे दिया कोई भी एक पॉइंट, सपोज यहां आपको दे दिया जाता a to b, तो आपको क्या करना है, अपर लिमिट पहले लिखनी है v ऑफ b एंड लोअर लिमिट क्या करनी है, बाद में लिखनी है। तो vb माइनस va इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ऑफ a to b e डॉट dr। एक्चुअली में क्या होता है कि हम जब a to b पढ़ते हैं तो यहां भी क्या करते हैं, va माइनस vb कर देते हैं, जो गलती होती है। हमारा रियल फॉर्मूला ये है और इसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। इफ हियर द लिमिट इज a to b then we will write here vb minus va। Important facts about electric potential. Electric potential is a scalar quantity. It may be positive or negative. Its unit is joule per coulomb because v equals to w upon q. So w is joule and q is coulomb. So its unit is joule per coulomb and the combined unit of this one is called volt. So जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसकी जो यूनिट होगी, डायरेक्ट यूनिट, दैट विल बी वोल्ट और जूल पर कुलाम। जूल को आप न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हैं, कुलाम इज कुलाम चार्ज। सो यहां से हम डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं एंड इस डायमेंशन विल बी m1 l2 t-3 a-1। नाउ वी विल डिफाइन 1 वोल्ट। व्हाट इज 1 वोल्ट? सी हियर स्टूडेंट्स, v इक्वल्स टू w अपॉन q नॉट। ओके, तो यहां हमने क्या लिखा है, द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड टू एस्टेब्लिश ए यूनिट पॉइंट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो हमें डिफाइन करना 1 वोल्ट को, तो एज इट इज डेफिनेशन होगी Q नॉट इज 1 कूलम, ओके, देन V इक्वल्स टू W एंड W इज 1 जूल, देन V इक्वल्स टू 1 वोल्ट। तो यहां से वापस देखना, 1 जूल वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड टू एस्टेब्लिश ए यूनिट और 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट।
मींस किसी भी एक कूलम्ब चार्ज को किसी फील्ड में एस्टेब्लिश करने के लिए अगर हम 1 जूल वर्क कर रहे हैं तो उसका जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी 1 वोल्ट। एट इंफिनिटी और एट द सरफेस ऑफ अर्थ पोटेंशियल एज्यूम टू बी 0। इंफिनिटी पे और सरफेस अर्थ की सरफेस पे जो पोटेंशियल हम एज्यूम करेंगे वो 0 होगा, और जो अर्थ का सरफेस है दैट इज द रेफरेंस पॉइंट ऑफ द पोटेंशियल। नाउ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम टेम्परेचर की बात करते हैं, द टेम्परेचर और हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर और हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, उसी तरह से यहां पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डज रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक स्टेट ऑफ ए कंडक्टर और चार्ज और ए सिस्टम ऑफ चार्ज which does indicate the direction of flow of charge। ओके, मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बताएगा आपको, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बताएगा कि ये जो चार्ज हो किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। दैट इज ओनली द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। द पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। याद रहे स्टूडेंट्स कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। इट मीन्स नेगेटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। सो ये आपका क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सपोज देयर आर 2 पॉइंट्स और उन 2 पॉइंट्स के लिए आपका पोटेंशियल डिफाइन है, तो जो चार्ज फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज जो है वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। Now the next topic is electric potential due to a point charge. So let us consider a steady point charge HQ for which we have to find out the electric potential at a distance r. So here we have a plus Q charge. For that we have to find out the electric potential and its direction will be along to positive x-axis. Now we have the reference point infinite and there is the test charge plus Q naught which experiences the force due to this source charge, that is QE. This one. Now the B is the point where we have to find out the electric potential due to this charge. Because its distance is r, means we have to find out the electric potential due to this charge at a distance r. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेंगे, कितना डिस्टेंस, यहां से यहां तक, ठीक है, एंड दैट इज dx और dr। ये देखिए, सो जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे इसको एस्टेब्लिश करने के लिए वो अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ऑलरेडी वी नो kq upon r square. So by the definition of electrostatic potential, V equals to minus integral from infinite to r E dot dr। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है। सो E ऑलरेडी हम जानते हैं, ड्यू टू point positive charge at a distance r, E equals to kq upon r square. Put the value this and integrate from infinite to r, then we will get V equals to kq upon r. It means potential at a distance r due to this charge q is kq upon r or directly proportional to 1 by r. Means जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, इट मीन्स नियर बाई द पोटेंशियल, सॉरी नियर बाई द चार्ज पोटेंशियल इज लार्ज, क्योंकि नियर बाई द चार्ज आर क्या हो जाएगा, टेंस टू जीरो, टेंस टू जीरो, तो वी क्या होगा, टेंस टू इनफाइनाइट, मीन्स वेरी लार्ज। और जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा मीन्स टेंस टू इनफाइनाइट जाएगा, तो इनफाइनाइट के लिए वी टेंस टू जीरो। तो V और R का जो ग्राफ होगा दैट विल बी डिक्रीजिंग। ओके, और रिमेंबर स्टूडेंट्स, नियर बाय द चार्ज पोटेंशियल इज लार्ज एंड अवे फ्रॉम टू चार्ज
पोटेंशियल विल डिक्रीज। ओके, एंड 1/r के रेस्पेक्ट में हम बात करें देन इट विल बी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि v इक्वल टू अगर 1/r मान लो x है तो v इज प्रोपोर्शनल टू x और v प्रोपोर्शनल टू x क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। नाउ नेक्स्ट वन इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसा ये टर्म है वैसा ही इसका डेफिनेशन होगा। पोटेंशियल डिफरेंस मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। तो द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड टू डिस्प्लेस ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर within the electric field is known as electric potential difference between these 2 points. Okay, so see here, ये आपका चार्ज Q है, तो इस कैपिटल Q पॉइंट पे एक पोटेंशियल होगा। ओके, अब यहां से अगर हम इस B पॉइंट तक डिस्प्लेस करते हैं तो हमने स्टार्ट कहां से किया, Q से, और कहां लेके जा रहे हैं, B पे, और इसकी वजह से जो पोटेंशियल है प्लस Q की वजह से ये डिस्टेंस डिफरेंट है और Q पॉइंट के लिए डिस्टेंस डिफरेंट है। इट मींस देयर विल बी डिफरेंट पोटेंशियल। तो यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और हमें क्या करना होगा, यहां से इस पॉइंट पे पर्टिकुलर पोटेंशियल है तो यहां से यहां तक इस पोटेंशियल से इस पोटेंशियल के बीच में भी इस चार्ज को जब लेके जाएंगे तो अगेंस्ट वर्क करना होगा, और दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स कि हम Q पॉइंट से B पे जा रहे हैं, देन लिमिट विल बी Q टू B, तो VB माइनस VQ we will get. So here potential is VB. Suppose we are taking from A to B, then इस डायरेक्शन में यहां पे आपका A है, यहां आपका B है, देन हमने चार्ज को कहां से स्टार्ट किया, A टू B स्टार्ट किया है, देन पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA इक्वल्स टू वर्क फ्रॉम A टू B डिवाइड बाई Q नॉट। ओके, तो VB माइनस VA इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ऑफ लिमिट A टू B E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, एंड जो W होगा वो आपका क्या होगा, Q इंटू V, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। सो द वर्क डन टू डिस्प्लेस ए चार्ज ऑफ Q नॉट फ्रॉम पॉइंट A टू B इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी W फ्रॉम A टू B इक्वल टू Q नॉट VB माइनस VA। ये जो टर्मिनोलॉजी है A टू B एंड VB माइनस VA, ये आपको जरूर ध्यान में रखना। A टू B आपने स्टार्ट किया, बट पोटेंशियल के लिए आपका क्या होगा, फाइनल लिमिट और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इंपॉर्टेंट टर्म देखते हैं। वी नो दैट इंटीग्रल एंड डिफरेंशिएशन आर द इनवर्स ऑपरेटर, तो V इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr। अगर दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये इंटीग्रेशन इधर से हट जाएगा और यहां क्या आएगा, dv इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr डिवाइड में आएगा, तो E वेक्टर इक्वल्स टू माइनस डेल V अपॉन डेल r। हियर डेल अपॉन डेल r इज एन ऑपरेटर, तो E वेक्टर कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ डेल वेक्टर V। ओके, वेयर डेल वेक्टर इक्वल्स टू डेल ओवर डेल x I k प्लस डेल ओवर डेल y j k प्लस डेल ओवर डेल z k k। So one important thing is, if a vector quantity, and here vector quantity is electric field, is conservative, then a scalar potential exists such that vector quantity is equals to negative of del operator of that potential। ये बहुत important term है, E equals to minus del V, or in the previous lecture we studied that if a vector quantity is conservative then its curl will be 0, तो यहां भी इसका कर्ल क्या होगा, E का 0 ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका कंजर्वेटिव क्वांटिटी होता है, ठीक है, और जो भी कंजर्वेटिव क्वांटिटी होगा उसके रेस्पेक्ट में स्केलर पोटेंशियल जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो इसका कर्ल 0 है, यहां पे देखिए इसका स्केलर पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस डेल V। यहाँ डेल क्या है, ऑपरेटर है, जिसको यहां से डिफाइन करते हैं, ये 3D में है, और यहाँ पे अगर आप x डायरेक्शन की बात करें तो डेल ओवर डेल x लिख देंगे, y की बात करेंगे तो डेल ओवर डेल y,
ठीक है, तो आर की बात कर रहे हैं, देन डेल और डेल आर। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। So suppose we have a point P where we have to find out the electric potential due to Q1, Q2, Q3, Q4 and Qn. It means this is the system of n charges and there is a point P and point P where we have to find out the electric potential due to these n charges. सो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्केलर क्वांटिटी होती पोटेंशियल, तो Q1 की वजह से यहाँ पोटेंशियल, Q2 की वजह से Q3, Q4 और Qn सबकी वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करके एल्जेब्रिक सम कर देंगे एंड दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस इज द algebraic sum of their individual potentials at that point. V1 plus V2 plus V3 plus V4 up to Vn। और यहां क्या हो जाएगा, यहां पे V इक्वल्स टू V1 क्या होगा KQ अपॉन R, तो Q को हम क्या कह देंगे Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2, Q3 अपॉन R3, तो V इक्वल्स टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज K सम ओवर 1 to n, सब चार्जेस के लिए सम कर देंगे Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2, तो जनरल क्या हो जाएगा QI अपॉन RI। सो नोट्स देख लेते हैं। एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस विल बी एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। V equals to V1 to Vn. V1 is electric potential due to charge Q1, potential at point due to charge Q2. Similarly, Vn is potential at point due to charge N.